Hi Rishika, how are you doing? Namaste sir, I'm good, thank you. Hi Aditya. All right, so we will begin. Hi Hardat. We will begin with discussion of test. Okay, all right. Thank you, sir. Okay, I'm good, Hardat. Thank you. Hi Joel. Hi Girish. Good evening. Good evening, Anushka. वो छोड़ दो जाने दो नॉर्मल सिलेबस डोंट पे अटेंशन टू इट गुड इवनिंग आशीष नहीं अथर उसको लॉरेंट्स नहीं बोलते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट हो तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम को लॉरेंट्स फोर्स बोलते हैं मतलब एक पार्टिकल ऐसी जगह मूव कर रहा हो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू वी क्रॉस बी इन दोनों के सम को लॉरेंट्स फोर्स बोलते हैं And Rishika is asking we should get holiday in September. Few days. Not in my hand. All right. Ayush, welcome. Aishish is not able to hear or see me. Can others hear me? Can others are able to see me? Yeah, yeah. I'll speak to them once. All right, guys. So I'm switching the chat to private mode. But before that, can you please confirm whether this was the first question in the test? Was this the first question? All right, great. Because I had two test papers to choose from. Like I was not sure which particular paper was applicable for your batch. So what I'm going to do, I'm going to switch the chat to private now so that you are not. Okay, Ashish, refresh. I think Ashish is having some problems with audio and visuals. Okay. अरे अथर वो मेरी चैट तो देख ही सकता है नहीं ओके ऑलराइट okay, now he's fine. Okay, cool. All right, so guys, I'm going to show you questions one by one. You can tell me whether to skip or whether to discuss. This one, what about this one? Skip, nice. Okay, how about this one then? How about this one? Skip. This. Okay, this. This. Nice. How about this? This. Simple question, velocity of recoil. How about this? Great. Pretty easy. Again, easy. Oral questions. First, second, and third. How about this? Again, an easy one. How about this? Bomb of mass produces two pieces of mass and goes at the speed of the total energy brought to the two fragments. Again, yeah, easy. How about this one? Again, easy. This one, root E and 1 upon momentum. Again, E. How about this one?
Ayush, do you want me to discuss this one? Cannonball fired with the velocity of 200 meter per second and accelerated with the horizon of the highest product speaker fragment. Okay, so Ayush has asked me to discuss this one. Let's see what the question says. So the question says that cannonball has been fired at 200 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. So this is 200 meter per second and at 60 degree with the horizontal. Okay, highest point. So at highest point it will be traveling with a speed of 100. ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी, ये क्लियर है? ठीक है, 200 cos 60. So इससे ट्रैवल कर रहा था into three equal fragments, one going vertically upward with the velocity of, the second one falling vertically downward with the velocity of. So यहाँ से तीन पार्ट बन गए, ठीक है, तीन पार्ट बन गए, एक गया ऊपर एक गया नीचे, और इसमें दे रखा है कि तीन इक्वल फ्रैगमेंट बने हैं तो मासेस इक्वल होंगे, ठीक है, तो ये m/3 होगा और ये भी m/3 होगा, इन दोनों की वेलोसिटीज भी इक्वल दे रखी है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम आया नहीं, आना भी, ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट है वो हॉरिजॉन्टली ही ट्रैवल करेगा, मतलब आफ्टर कोलिजन एक इधर गया एक इधर गया, आफ्टर एक्सप्लोजन इन दोनों के मोमेंटम तो बराबर हो गए, तो इसके पास जो सारा हॉरिजॉन्टल मोमेंटम था इसी के पास आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी 300 होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो मोमेंटम था वो 100 इंटू एम था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अब है m/3 इंटू वी, तो वी की वैल्यू 300 आ जाएगी, ठीक है, तो ये यहाँ से जितना भी आगे जाके गिरता, अब उसका 3 टाइम्स आगे जाके गिर जाएगा, सो ये डिस्टेंस अगर r/2 था तो ये डिस्टेंस 3r/2 हो जाएगा, इसका मतलब जो ओरिजिनल रेंज था उसका डबल होगा, कि निकालना क्या क्या है, थर्ड फ्रेगमेंट विल बी मूविंग विद द वेलोसिटी, बस हो गया, बी ऑप्शन, आगे तो सॉल्व ही नहीं करना, हाँ राइट, ओके, हाउ अबाउट दिस वन, heavy steel ball head on collision is elastic, yeah, how about this one, okay, great, all questions done, this one done, this one bullet of mass velocity, okay, again a simple one, mass again a simple one, skate over 3 kg, again simple one, बहुत easy questions है, velocity center mass of the particle is v and the sum of the mass of the two particles and the kinetic energy of the system is the velocity of the center of mass of two particles v the sum of, ये हुआ क्या? Okay, guys, this is important now, ठीक है, please note this down in your copies, ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए मैं काइनेटिक एनर्जी लिखने का एक तरीका बता रहा हूँ, टू पार्टिकल सिस्टम है, मान लेते हैं एक m1 मास का पार्टिकल है, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, एक m2 मास का पार्टिकल है, v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इस सिस्टम की हमें लिखनी चाहिए हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, राइट, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर स्क्वायर प्लस हाफ टोटल मास इंटू vcm स्क्वायर, ठीक है, दिस रिजल्ट इज ऑलवेज वैलिड, ठीक है, ऋषिका जैसे तुम इसको एक्सपैंड करोगे, अगर तुम जैसे इस पार्ट को अगर एक्सपैंड करोगे यू विल एंड अप विद दिस, ठीक है, अभी करके दिखाऊं क्या, चलो करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं, लाइक वीसीएम की वैल्यू इसमें डालोगे, इट विल कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ टाइम बट लेट्स गिव इट अ ट्राई, ठीक है, सो आई एम प्रूविंग दिस, ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है, तो चलो पहले कर लेता हूं मैं, यस यस अथर वी हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है,
मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। राइट हैंड साइड में मैंने लिखा था हाफ, देन m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस हाफ टोटल मास। टोटल मास को हम लिख देंगे m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू VCM वेक्टर स्क्वायर। तो VCM को क्या लिखेंगे हम, देखो VCM को कैन आई राइट m1 v1 वेक्टर, ठीक है, प्लस m2 v2 वेक्टर, ठीक है, प्लस m1 प्लस m2 स्क्वायर। ये आ रहा है कि समझ में? ठीक है हरदात, तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक इररेलेवेंट बात पे दिमाग लगा रहे हो? ठीक है, अभी ये आया समझ में? तो देखो पहले तो यहां से देखते हैं। देखो सी, इनके स्क्वायर्स को अलग करता हूं सबसे पहले तो मैं, ठीक है। जैसे नीचे एक स्क्वायर होगा, m1 प्लस m2 का स्क्वायर होगा, ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहां से, ठीक है। सो m1 प्लस m2 विल बी लेफ्ट इन द डिनोमिनेटर। सो व्हाट आई कैन डू नाउ, आई कैन पुल आउट फ्यू थिंग्स एज कॉमन। जैसे इस वाली टर्म में देखो हाफ है, इसमें भी हाफ है, आई कैन पुल दिस आउट एज कॉमन क्वांटिटी। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगेन m1 प्लस m2 बचा है, सो दिस कैन बी पुल्ड आउट एज द कॉमन क्वांटिटी। सो लेट्स डू दैट, ठीक है। सो 1/2 देन m1 प्लस m2, ये तो कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या, इधर से बचा m1 m2 इंटू, इस स्क्वायर को मैं एक्सपैंड कर देता हूं। इसको एक्सपैंड करेंगे तो v1 वेक्टर स्क्वायर प्लस v2 वेक्टर स्क्वायर प्लस टू नहीं, प्लस टू नहीं, -2, दिस विल बिकम -2 v1 वेक्टर v2 वेक्टर। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? और इधर से क्या बचेगा, इस साइड से बचेगा प्लस m1 v1 वेक्टर, इसका भी स्क्वायर है, इसको भी एक्सपैंड ही कर देते हैं। एक्चुअली देखो एक्सपैंड करना इज नॉट अ गुड आइडिया, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा दिमाग लगा के कैलकुलेशन की जाए तो प्रोबेबली विल बी एबल टू सेव सम टाइम, ठीक है। पर मेरे को लग रहा है कि वो जो सोचने में टाइम इन्वेस्ट होगा वो सिचुएशन को बराबर सी कर देगा। मतलब बिना सोचे समझे अगर मैं सीधा कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दूं, आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी एबल टू ऑब्टेन द करेक्ट रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप दैट वी हैव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सोचने में दिमाग मतलब टाइम खर्च करने से अच्छा कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सो आई एम जस्ट कीप ऑन डूइंग द कैलकुलेशन दैट शुड बी डन, ठीक है। सो एंड यू गाइस पे अटेंशन, कुछ गलत करूं तो बता देना, ठीक है, कुछ गलत करूं तो बता देना। अब जैसे व्हाट आई कैन सी हियर, मुझे ना देखो एक v1 स्क्वायर यहां नजर आ रहा है, एक v1 स्क्वायर यहां नजर आ रहा है। तो v1 स्क्वायर लिखकर उसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा वो चेक करते हैं। इसका कोएफिशिएंट बनेगा m1 स्क्वायर m1 m2, तो इनफैक्ट m1 भी बाहर आ जाएगा, तो इस m1 स्क्वायर में से बचेगा m1 और इस m2 में से। तो ये देखो, ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इन दोनों टर्म्स का आई हैव टेकन केयर ऑफ दीज टू टर्म्स, ठीक है। सिमिलरली लेट्स गो फॉर दिस टर्म, आई कैन सी अ v2 स्क्वायर हेयर। तो इसमें से मेरे ख्याल से m2 v2 स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल पाऊंगा। फ्रॉम हेयर आई विल बी लेफ्ट विथ m1 m2 एंड फ्रॉम हेयर आई विल बी लेफ्ट विथ m1, ठीक है। एंड सो वी हैव टेकन केयर ऑफ दीज टू टर्म्स आल्सो। अब यहाँ पे क्या बचा, ये कैंसिल हो गई क्या, 2m1 m2 v1 v2, ये टर्म्स कैंसिल हो गई। आर यू एबल टू सी दिस? ठीक है, तो यहां से देखो m1 प्लस m2 कॉमन निकल जाएगा, m1 प्लस m2 कॉमन निकल के बचेगा क्या, ये बचेगा हाफ इंटू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। सो हैव यू ऑब्टेन्ड व्हाट वी वर ट्राइंग टू ऑब्टेन? आ रहा है कि यहां तक समझ में? ठीक है, सो यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस, लाइक दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट। यू विल फाइंड कि कुछ बड़े क्वेश्चंस को ब्रेक करने में ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। अब जैसे पहले तो इसी क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या समझा रहा है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज v, तो इस VCM की जगह v आ जाएगा। सम ऑफ द मासेस इज m, तो यहाँ पे स्मॉल m आ जाएगा। नोटिस करो कि ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो नहीं सकती, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो नहीं सकती, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एड्रेस करो जरा, देखो ये क्वेश्चन एड्रेस हो गया क्या? द ठीक है, द क्वेश्चन सेज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल इज v एंड द सम ऑफ द masses ऑफ द टू पार्टिकल इज m, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, इनफैक्ट इक्वल तो होगा ही नहीं, ठीक है, डिफरेंट ही होगा।
will always be less than, will always be greater than or equal to, will always be greater than, equal टू कब हो सकता है? यस, इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वल टू तब होगा जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए। यस, अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई, सो इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, देन हाँ, तो इक्वल भी आ जाएगा। यस यस, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। अब मैं तुम्हें इस इक्वेशन की पावर दिखाता हूं, मतलब व्हाट हाउ दिस इक्वेशन इज यूजफुल। ठीक है, मेक श्योर कि तुम इसको अपनी नोट्स कॉपी में उतार रहे हो, जहां से भी तुम चीजों को रिवाइज करते हो वहां पे ये चीज मेंशन्ड होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है। कैसे, अब मैं बताता हूं। देखो, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं कि एक टू पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी किस फ्रेम से लीस्ट नजर आएगी। ठीक है, एक टू पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी किस फ्रेम से लीस्ट नजर आएगी, व्हाट विल बी योर आंसर? ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, करेक्ट। क्योंकि तुम नोटिस करो कि जो मैंने ब्लू कलर के क्लाउड में बना रखा है, इस ब्लू क्लाउड के अंदर जो है, दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। ये बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि इसमें हमने पार्टिकल्स की एक दूसरे के रिलेटिव जो वेलोसिटी है वो यूज कर रखी है। वो रिलेटिव वेलोसिटी तो कहीं से भी देखो वो तो सेम ही नजर आएगी। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल को दूसरे की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, ये बात आ, हर जगह से एक ही तरह से दिखाई देती है। और यू कैन से कि फर्स्ट टर्म में हम एक पार्टिकल पे बैठ के दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो तो फिक्स्ड ही है। ठीक है, आ रहा है यहां तक समझ में? अगर हम अब अलग अलग फ्रेम में जाके ऑब्जर्व करेंगे तो हमें वीसीएम डिफरेंट दिखाई दे सकता है। अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चले जाएंगे तो हमें वीसीएम जीरो दिखाई देगा। अगर हम बाहर आ जाएंगे सेंटर ऑफ मास से तो हमें वीसीएम मूविंग दिखाई देगा। ठीक है, तो हमसे अगर पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी हमें किस फ्रेम से लीस्ट दिखाई देती है, तो इसका आंसर होगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम से। इससे यह भी पता लगता है कि काइनेटिक एनर्जी की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जाके बैठ जाएं तो जो सेकंड टर्म है वो जीरो हो जाएगी, और जो फर्स्ट टर्म है वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। दिस इज द लीस्ट काइनेटिक एनर्जी दैट वी विल बी एबल टू ऑब्जर्व फॉर अ गिवन मोशन। लाइक मासेस गिवन है, वेलोसिटीज गिवन है, हमसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई हम कहां जाके देखें जिससे कि हमें काइनेटिक एनर्जी लीस्ट नजर आए, तो आंसर होगा सेंटर ऑफ मास। फिर हमसे पूछ लिया जाएगा कि अच्छा बताओ अगर हम वहां जाके देख रहे हैं तो हमें क्या काइनेटिक एनर्जी नजर आएगी, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन हेड ऑन कोलिजन? डू यू रिमेंबर दैट? Do you remember the formula? All right. So just a minute. ठीक है, तो अब ये देखो, दो पार्टिकल्स के कोलिजन में वीसीएम चेंज होता है क्या? दो पार्टिकल्स जब कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो वीसीएम चेंज नहीं होता। ठीक है, और हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिख रहे थे? जैसे ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम E को लिखते हैं v2 माइनस वी1 अपॉन u1 माइनस u2, ये लिखते हैं। तो जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है वो E टाइम्स ऑफ u1 माइनस u2 है। तो टक्कर से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लिखेंगे हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M इंटू वीसीएम स्क्वायर। टक्कर के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लिखेंगे हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू, यहाँ पे आएगा v1 माइनस v2, लेकिन v1 माइनस v2 को E टाइम्स ऑफ ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? लॉस निकालने के लिए हम इनिशियल में से फाइनल को माइनस करते हैं। तो जब हम माइनस करेंगे, ये वाली टर्म तो सेम रही है, कैंसिल हो जाएगी। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो सी कि u1 माइनस u2 का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, और 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे डराइव होता है? मुझे याद आ रहा है मैंने तुमसे कहा था कि इस फॉर्मूले को डेराइव करने की कोशिश करना। ठीक है, पर मैंने डेरिवेशन का जो स्टेप बताया था, मैंने ये कहा था कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से लिख लेना। ठीक है, v1 v2 के एक्सप्रेशन हमने याद किए थे, और इनिशियल तो पता है ही, और डिफरेंस लेके देख लेना, वैसे भी डेराइव हो जाता है। ठीक है, बाकी ये डेरिवेशन थोड़ा बेटर है। ठीक है, बेटर इसलिए क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। आ रहा है तक समझ में? सो द फॉर्मूला दैट आई हैव नाउ टोल्ड यू विल बी हेल्पफुल इन एड्रेसिंग
अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो ये फॉर्मूला याद रखना, अभी जो मैंने बॉक्स में फॉर्मूला दिख रहा है तुमको अभी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि सेंटर ऑफ मास में जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो इस फॉर्मूले से ही एड्रेस होंगे, राइट। All right, so nothing. I was just thinking something like mosquito bit me. I was taking care of that. All right, so I think we are done with this question now. All right, so how about this one? नहीं नहीं, I wasn't. वैसे if I would have like if I would have found it, I would have tried to kill it. Definitely, I would have tried to kill it. Done. How about this one? वो एक रैकेट आता है ना मॉस्किटो मारने का. I love using that racket. Okay, this one. What does the question says? A small sphere of radius r is held against inner surface of a smooth spherical shell of radius 6r as shown in the figure. The masses of the shell and the small spheres are 4m and m respectively. The arrangement is placed on a smooth horizontal table. This sphere is now released. Okay, the coordinate of the center of the shell when the smaller sphere reaches there. Okay, guys, let's try to. Okay, चलो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं. फर्स्ट पहले तो कुछ थ्योरी फिगर बड़ा करने की कोशिश करता हूँ. तब होता है, ठीक है. देखो ट्रिकी नहीं है, थोड़ा केयरफुल रहना इस क्वेश्चन के अंदर. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस सिस्टम का एफबीडी इमेजिन करके बताओ कि इस सिस्टम पे कोई हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स लगेगा क्या. इस सिस्टम पे कोई हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स लगेगा क्या. नहीं लगेगा ना, ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि फ्रिक्शन सरफेस पे है नहीं. ये दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो इंटरनल है. तो ग्रेविटी एंड नॉर्मल रिएक्शन दे आर द ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस, सो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, अब देखो रेडियस इनके शायद आर और 6r दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे एक पार्टिकल मानेंगे 4m मास का. ठीक है, एंड वन पार्टिकल इज एट हेयर, द मास इज नो नॉट 4m, द मास ऑफ दिस वन इज m एंड द मास ऑफ दिस वन इज 4m, राइट. ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ. एक का रेडियस 6r दे रखा है, एक का रेडियस r दे रखा है, तो ये डिस्टेंस 5r हो गया क्या. ये डिस्टेंस 5r हो गया. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास हैवियर पार्टिकल के क्लोज होता है, और हम ये भी निकालना जानते हैं कि कितना दूर होता है. तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो अभी यहां कहीं पर होगा, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस होगा कितना, ये होगा 1/, ये r होगा, ये चेक कर लो. ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, तुम भी कैलकुलेट कर लो. ठीक है, मतलब सामने वाले का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू द डिस्टेंस, तो ये r आएगा. तो सेंटर ऑफ मास यहां पर है, यहां तक आ रहा है, समझे. अब ये मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास इस जगह को छोड़ सकता है क्या. कैन सेंटर ऑफ मास लीव दिस प्लेस, लाइक दिस लाइन, द ब्लू लाइन दैट आई हैव ड्रॉन, कैन सेंटर ऑफ मास गेट टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट. नो, वो इसी पे रहेगा. अच्छा, सेंटर ऑफ मास वर्टिकली मूव करेगा या वर्टिकली भी मूव नहीं करेगा. सेंटर ऑफ मास वर्टिकली मूव करेगा या वर्टिकल मोशन भी नहीं होगा. व्हाट डू यू थिंक, वर्टिकल मोशन होगा या वर्टिकल मोशन नहीं होगा. वर्टिकली तो मूव करेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एक्सटर्नल फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं. ठीक है, देयर आर 2 mg, देयर इज वन नॉर्मल. अब हमें चलो हमें ये नहीं पता कि नॉर्मल mg के सम से बड़ा है कि छोटा है, तो हम उस बेसिस पे जज नहीं कर पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा. पर हमें यह पता है कि बड़े स्फेयर की हाइट चेंज हो नहीं रही और छोटा स्फेयर नीचे आएगा. तो अगर एक अपनी हाइट चेंज कर नहीं रहा और एक की हाइट रिड्यूस हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास इज बाउंड टू गो डाउन. समझ आ रहा है, m1 y1 प्लस m2 y2 से.
ठीक है, एक नीचे नहीं जा रहा, दूसरा डेफिनेटली नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, देखो, ड्यूरिंग मोशन कैन आई से दैट देयर विल बी एन इंस्टेंट जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी, ये सिचुएशन भी क्रिएट होगी, कभी ना कभी तो होगी। सही है। अच्छा, क्या जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो ब्लू लाइन सेंटर ऑफ मास इस पूरे अरेंजमेंट का इसी लाइन पे मिलेगा हमें? ये सिचुएशन जब भी क्रिएट होगी, और हम ये बात ऑलरेडी कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह नहीं बदल सकता, हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी ये तभी क्रिएट होगी जब ये जो स्फेयर है, ठीक है, ये ऐसी पोजीशन में आ जाए, चेक करो, और जो छोटा स्फेयर है वो यहां पर हो। ये समझ में आया क्या, देखो जरा, यहां तक आया क्या समझ में? ये एक्स एक्सेस, ठीक है, तो इस समय जो छोटा स्फेयर है और जो बड़ा स्फेयर है इस तरह से होंगे, सेंटर ऑफ मास इस समय कहां पर होगा? सेंटर ऑफ मास इस समय यहां पर होगा, r/5, आर डिस्टेंस नीचे आ चुका होगा। ठीक है, लेकिन वो अपनी हॉरिजॉन्टल जगह से नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन को नहीं छोड़ा उसने। ठीक है, अच्छा, इस समय और क्या होगा जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा नहीं गया? ग्राउंड फ्रेम में इस छोटे स्फेयर की वेलोसिटी इधर होगी, मान लेते हैं v1, और बड़े स्फेयर की वेलोसिटी इधर होगी v2, इस तरह से वेलोसिटी होगी। ठीक है, और इक्वेशन ये सेटिस्फाई होगी कि mv1 इक्वल टू 4mv2। ये चेक करो मैं क्यों कह रहा हूं, हालांकि v1 v2 के बारे में क्वेश्चन में बात नहीं की गई है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि v1 v2 निकालो, ये v1 v2 निकल जाते क्या? एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि v1 v2 निकालो। एक इक्वेशन ये आ गई, ये मोमेंटम से आ गई, एक एनर्जी से आ जाएगी। एनर्जी से कैसे बनाएंगे? जो छोटे वाले मास है, एम मास जो है, उसकी हाइट रिड्यूस हुई है 5r से, तो mg5r इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड दिस इज द ओनली एनर्जी दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये बराबर होगा mv1 स्क्वायर, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ देन 4m इंटू v2 स्क्वायर। सो दीज आर द टू इक्वेशंस, इनको सॉल्व करके v1 v2 निकाल सकते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, इस इंस्टेंट के बाद ये अब ऊपर चढ़ने लगेगा, ये नीचे आने लगेगा। इवेंचुअली द सेंटर ऑफ मास हैड टू बी ऑन दिस। अब ये बताओ कि ये जो छोटा वाला स्फेयर है ये सेम हाइट तक राइज करेगा या नहीं करेगा, पहले तो ये कॉल लो, ये छोटा वाला स्फेयर सेम हाइट तक राइज करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि जब ये रेस्ट पे आएगा तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी वापस पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो सेम हाइट तक जाना जरूरी है। उस समय हमें जो फिगर मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, देखना ध्यान से। ठीक है, उस समय हमें जो फिगर मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो कुछ समझ बैठ रही है क्या? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये सेंटर हो गया, और ये डिस्टेंस होगा आर। देखो आ रहा है क्या समझ में? सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हियर। क्लियर है? तो ये ऐसे ऑसिलेट होते रहेंगे, मतलब ये प्रोसेस जारी रहेगी, अब वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली ऑसिलेट करता रहेगा, और ये दोनों, मतलब जो बड़ा वाला स्फेयर है वो हॉरिजॉन्टली ऑसिलेट करता रहेगा, जो छोटा वाला है वो ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, छोटे वाले का पाथ, जैसे छोटे वाले का जो सेंटर है, इज दिस सेंटर मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्राजेक्ट्री? इज दिस सेंटर मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्राजेक्ट्री इन ग्राउंड फ्रेम? नो, नॉट अ सर्कुलर ट्राजेक्ट्री, नो नो नो, नॉट अ सर्कुलर ट्राजेक्ट्री। कर्व्ड पाथ है लेकिन सर्कुलर नहीं है। सेंटर ऑफ मास वर्टिकली मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास नीचे जाता है ऊपर आता है, नीचे जाता है ऊपर आता है। ठीक है, एलिप्टिकल कांट से,
मतलब समवॉट लाइक दिस, यू नीचे आके ये ऊपर जा रहा है, दैट वी कैन ऑब्वियसली जज, बट और नेचर अभी तो नेचर मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब आई डोंट हैव आंसर रेडी विथ मी राइट नाउ, वो सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि क्या आता है। ठीक है, मतलब सॉल्व होगा भी या नहीं, आई एम डाउटफुल, लाइक आई हैव नेवर सॉल्व सच अ क्वेश्चन, सो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा सॉल्व होने में दिक्कत होती होगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं तो देख ही लिया होता मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, बट ये क्वेश्चन क्लियर है। अभी जैसे इसमें क्या पूछा हमसे, जो बड़ा वाला है वो कितने एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन कर रहा है, वो आर एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन कर रहा है क्या? जो बड़ा वाला स्फेयर है वो आर एम्पलीट्यूड के, तो इस जगह से सेंटर यहां से यहां आने का मतलब 2r डिस्प्लेसमेंट हो गया है। पूछा क्या था, लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन वाली स्लाइड को ही बड़ा कर दिया है, सो लेट्स, क्या था ये, x coordinate of the center of the shell when the smaller sphere reaches the other extreme position हो जाएगा 2r कॉमा x कोऑर्डिनेट ही नीचे 2r आ जाएगा आंसर। इस फिगर से बिल्कुल क्लियर है, x कोऑर्डिनेट विल बी 2r, राइट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार अगर आइडिया लग जाएगी करना क्या है, उसके बाद तो ये इजी हो जाता है। लाइक इफ दिस मोशन, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस मोशन, देन यू शुड फाइंड दिस क्वेश्चन इजी, शुड नॉट बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। ठीक है, और बेटर तुम्हें समझ में आता अगर मैं रेशियो सिमिलर जो क्वेश्चन में गिवन है वही यूज करता तो। ठीक है, मतलब जैसे इसमें रेशियो 1:6 का दे रखा है, लेकिन फिगर में ऐसा दिख नहीं रहा। फिगर में जैसे क्या रेशियो नजर आ रहा है, 6 तो नजर नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ अबाउट दिस क्वेश्चन, स्किप, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दिख रहा है, ऑलराइट। हाउ अबाउट दिस, हाउ अबाउट दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वील फॉरवर्ड ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस में, ये तो कर लिया होगा ना गाइस। अबे अथर क्या बोल रहे हो, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एल की जगह 2l डाल देना, ml²/12 साइन स्क्वायर अल्फा होगा, एल की जगह 2l आएगा तो ml²/3 साइन स्क्वायर अल्फा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, आशीष इज आस्किंग मी फॉर द प्रीवियस वन। क्या ये यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6m and length 12l is bent to make a regular hexagon, its moment of inertia about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane of the hexagon is, देखो ये वाला करना है ना डिस्कस, इससे भी प्रीवियस। ये गाइस ये किसी को भी डिस्कस करना है ये वाला, ओके। Ashish, you wants to discuss this one, right? Okay, let's have a look at this. So there is a hexagon here, ठीक है, और ये हेक्सागन बना है 6m और 12l की रॉड से, तो इसका मतलब एक साइड की जो लेंथ बनेगी ये 2l बनेगी। ठीक है, और एक साइड का जो मास होगा ये m होगा। पहले तो ये देख लो, ये क्लियर है क्या? ये एक रॉड जो है, मतलब एक सिंगल रॉड को हमने हेक्सागन की फॉर्म में बेंड कर दिया है, तो अब इस हेक्सागन की जो एक साइड है उसकी लेंथ है m, उसकी लेंथ है 2l और उसका मास है m। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हेक्सागन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ये पता है कि हेक्सागन के सेंटर को जब हम साइड से जोड़ते हैं, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। आर यू अवेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी? रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है। आई थिंक हेक्सागन मैंने पहले भी क्वेश्चंस में यूज किया है, तो ये बताया तो होगा ही डेफिनेटली। ठीक है, ऑलराइट, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं ये डिस्टेंस पूछूं, जस्ट अ मिनट, अगर मैं ये ग्रीन लेंथ पूछूं, ये निकाल लोगे? ये एंगल होगा 30 डिग्री का। ठीक है, ये लेंथ हो गई एल के बराबर, तो ये लेंथ कितनी हो गई? tan 30 इज, सो ये √3l हो जाएगी। ये चेक करो, ये जो ग्रीन लेंथ है ये √3l हो गई, राइट। ठीक है, अब आशीष देखो, इस एक रॉड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेट्स फॉरगेट द एंटायर हेक्सागन, लेट्स फोकस ऑन द डार्क ब्लू रॉड। इस ब्लू रॉड के लिए यहां से पास होती हुई एक्सिस और स्क्रीन से बाहर आती हुई एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई।
ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा मास ऑफ रॉड इनटू साइड लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। ये देखो आ रहा है समझ में, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके इसके अबाउट भी निकाल सकता हूं इस पर्टिकुलर रॉड का। तो ये हो जाएगा मास ऑफ रॉड इनटू डी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया एक रॉड का सेंटर के अबाउट। चेक करो सही है क्या, एक रॉड का सेंटर के अबाउट। इसको 6 टाइम कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, सारी रॉड्स का इसी तरह से लिखा जाएगा। क्लियर ऑन दिस? ठीक है, ये तो इजी है ही। ठीक है, इसका तो मैंने फॉर्मूला बताया था, उसमें तुम्हें सिर्फ एल की जगह 2L डाल देना है, दैट्स इट। हाउ अबाउट दिस वन? हरदार, तुम पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या? तुम एल की जगह 2L डालो, तुम्हें बाय 3 दिख जाएगा। तुम डालो तो सही एक बार। बेटा एक बार डाल तो ले, अगर नहीं हुआ तो फिर पूछ लेना, डाल तो ले। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? ऑलराइट, हाउ अबाउट दिस सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस? लुक्स लाइक एन इजी वन। मतलब इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था, ऑफ कोर्स डेटा डिफरेंट है, पर एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट हमने एड्रेस किया था कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, ओके, सो आई थिंक द डिस्कशन ऑफ पेपर एंड्स हियर। ठीक है, अब गाइज लेट मी नो लाइक हाउ मेनी ऑफ यू हैव डाउट्स फ्रॉम फिजिक्स, नॉट द एंड ऑफ सेशन, नो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डाउट्स फ्रॉम फिजिक्स गैलेक्सी? लाइक सी इफ मोर पीपल हैव डाउट तो मैं उसको उसका डिस्कशन करते हैं। अदरवाइज मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, ताकि since the attendance is good in this session, so 3 people are willing to discuss. What about others? Guys, physics galaxy attempt करो, मतलब if you are not doing it, you are probably missing out on something. Okay, 52 minutes is a good enough time. Okay, एक काम करते हैं, सेशन के बाद डिस्कस करते हैं, मतलब आफ्टर 10:30 डिस्कस करते हैं। अभी मैं आगे की थ्योरी पढ़ाता हूँ, राइट? बिकॉज द अटेंडेंस इज गुड, सो डोंट वांट टू लूज दैट अटेंडेंस। ठीक है, तो अभी मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, एंड देन वी कैन हैव डिस्कशन लेटर ऑन, लाइक आफ्टर द सेशन टाइमिंग। ऑलराइट, सो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई नीड टू, आई डोंट थिंक कि मैंने रिजिड बॉडी पे डिस्कशन स्टार्ट किया था, राइट? रिजिड बॉडी पे डिस्कशन थोड़ी ना स्टार्ट किया था। Alright, so give me a 2 minute break. Like let me just add content to this session. Okay, so I'm giving you a 2 minute break. If you want to uh, like get away for 2 minutes, you are allowed to do that. I am adding content. Okay. Yeah, you can chat amongst yourself by that time.
Yep, guys. All right, guys. I'm back again. Uh, okay. Yep. Am I visible now? Am I visible now? Okay. Great. Audio is good and video is good, right? Like you can see the canvas also. Cool. So we talked about this angular velocity. ठीक है, चलो प्राइवेट चलते हैं. ठीक है, आपस में बात करके तुम लोग डिस्ट्रैक्ट तो हो ही गए होगे, so it's better to stay private for some time now. ठीक है. So you remember we talked about angular velocity of one point relative to the other. ये सारी slides हम cover कर चुके थे. ठीक है, ये हमने cover कर लिया था. And we talked about the fact that unlike like omega लिखने का जो complete formula है वो ये है. ठीक है, and that omega AB and omega BA they are same. Like ऐसा नहीं होता जैसा कि relative velocity में होता है कि opposite direction में दिखता है, ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो हमने ये सारी बात करी थी. एंड यस आई रिमेंबर वी वर डिस्कसिंग रोटेशन वर्सेस ट्रांसलेशन. ठीक है, सो वी टॉक्ड अबाउट कि किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन है या नहीं ये कैसे पहचानते हैं. हम उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं या इमेजिन कर लेते हैं, और अगर वो लाइन हमें अपनी ओरिएंटेशन चेंज करती हुई नजर आए तो रोटेशन इन्वॉल्व है. ठीक है, मतलब रोटेशन की कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है, उनके बिना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. और अगर लाइन बना दे और लाइन अपनी ओरिएंटेशन चेंज ना करे तो इसका मतलब तुम्हें रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सफिशिएंट है उस सिचुएशन से डील करने के लिए. इसको हम कहते हैं पार्टिकल डायनामिक्स. ठीक है, मतलब रोटेशन के बिना जो कुछ भी हम करते हैं दैट इज कॉल्ड पार्टिकल डायनामिक्स. ठीक है, सो ये हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था. मतलब ट्रांसलेशन की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी. ठीक है, मैंने कहा था कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड. ठीक है, ये पॉइंट तुम जितना जितना नेचुरली तुम्हें याद रहेंगे तुम्हारी मैकेनिक्स उतनी स्ट्रांग रहेगी. मतलब इट शुड नॉट बी लाइक कि तुम्हें ये पॉइंट्स रिकॉल करने की जरूरत पड़ रही है या तुम भूल जाओ फिर कोई और तुम्हें याद दिला रहा है, ऐसा नहीं. जितना नेचुरली तुम इनको याद रख पाओ, मतलब इनको इतनी बार रिवाइज करो कि ये दिस शुड गेट इनग्रेन्ड इन यू. ठीक है, मतलब तुम्हें नेचुरली ट्रांसलेशनल मोशन बोलते ही तुम्हें सीधा तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए कि भाई वेलोसिटीज आइडेंटिकल होंगी और ट्राजेक्टरीज जो है वो भी आइडेंटिकल होंगी. ठीक है, मतलब अच्छे से बात समझ लो ये. और रोटेशनल मोशन के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स मे हैव डिफरेंट वेलोसिटी. आई डू रिमेंबर डिस्कसिंग द प्रेजेंस ऑफ दिस मे वर्ड हियर. ठीक है, एंड ट्राजेक्टरीज कैन बी डिफरेंट, राइट. ठीक है, सो ये एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया था. इस एग्जांपल में मैंने इस सेंट्रल पॉइंट का रेडियस पूछा था. अगर स्ट्रिंग की लेंथ एल है तो इस सेंट्रल पॉइंट का रेडियस, कैन यू टेल मी नाउ, डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द आंसर? स्ट्रिंग की लेंथ अगर एल है तो सेंटर पॉइंट, इनफैक्ट इस पूरे ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट को मार्क करके अगर पूछा जाए कि वो उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, द आंसर वुड बी सर्कुलर. ये पूछा जाए कि ट्रैजेक्टरी का रेडियस कितना होगा, द आंसर विल बी एल. ठीक है, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिकॉज वी आर प्रीटी श्योर ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ दिस पॉइंट. ये पॉइंट यू सर्कल पे मूव करेगा जिसका सेंटर ये होगा. ठीक है, एंड बस इतना काफी है जज करने के लिए बिकॉज दिस ब्लॉक इज अंडरगोइंग ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है, रोटेशनल मोशन इज नॉट देयर. तो हमने यहां तक की बात करी थी. ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या है. सो ये रैंकिंग वाला क्वेश्चन था. ठीक है, अब आगे देखते हैं. सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी. ठीक है, स्क्रीन पे क्या लिखा है, डोंट पे अटेंशन टू इट, आई विल टेल यू व्हाट रिजिड बॉडी इज. ठीक है, सो रिजिड बॉडी इज समथिंग विच कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड. ठीक है, एक बॉडी पर हम फोर्स लगाए और वो डिफॉर्म बिल्कुल भी ना हो, दैट काइंड ऑफ अ बॉडी विल बी कॉल्ड अ रिजिड बॉडी और अ परफेक्टली रिजिड बॉडी. मतलब ज्यादा एम्फेसाइज करना हो तो हम परफेक्ट वर्ड ऐड कर देते हैं. ठीक है, मतलब रियलिटी देखो क्या होती है. रियलिटी ये होती है कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी चीज परफेक्टली रिजिड नहीं है. ठीक है, इसका ये मतलब है कि जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो हर चीज में डिफॉर्मेशन होता है. ठीक है, आयुष आई हैव सीन योर मैसेज, विल कमेंट शॉर्टली. ठीक है, हर चीज में डिफॉर्मेशन होता है. यस यस अनुष्का, इवन अ डायमंड, यस, एक मेटल ब्लॉक पे सफिशिएंटली लार्ज फोर्स लगाया जाए
वो डिफॉर्म हो जाएगा। एक कॉन्क्रीट पिलर पे सफिशिएंट फोर्स लगाया जाए, वो डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि कितना फोर्स लगाया जाए। रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, ट्रेन के वेट से डिफॉर्म होते हैं। ठीक है, ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं जो मेटल के बने हुए होते हैं, इवन दे गेट डिफॉर्म्ड। ठीक है, सो डिफॉर्मेशंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, deformations are always there. No object in reality, in real world, is perfectly rigid, which means when sufficiently large force is applied, deformation is bound to happen. Okay, now this means that the concept of rigid body is a hypothetical concept, like it is an idealistic concept, just like a frictionless surface. ठीक है, मतलब रियलिटी में, ठीक है, रियलिटी में हमको कोई जस्ट मिनट अनुष्का, रेड योर क्वेश्चन, विल एड्रेस दैट। ठीक है, रियलिटी में हमको जैसे एक फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं मिलती है, पर फिर भी क्वेश्चंस करते वक्त हम मानते रहते हैं कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है। इसी तरीके से रियलिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। ठीक है, और नहीं होता, कोई सा भी नहीं होता, नो मैटर व्हाट ऑब्जेक्ट यू आर इज कमिंग टू योर माइंड। ठीक है, मतलब तुम जो भी मुझसे पूछोगे कि सर ये, सर ये, सर ये, मैं सबके लिए बोलता रहूंगा कि हाँ नहीं होता रिजिड, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, मतलब मेटल ब्लॉक और डायमंड, दीज आर द टू मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो दे आर नॉट रिजिड। ठीक है, द डिफॉर्मेशंस टेक प्लेस, यू अप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, और जो मैं कॉन्क्रीट पिलर की बात कर रहा था, ये बात तो तुम रियलाइज भी कर सकते हो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर क्रॉसिंग flyover or an over bridge. ठीक है, just stop your car, get down on the bridge and feel the vibrations. ठीक है, आराम से, बहुत ही आराम से फील होगा कि जब कार उन पे चलती है तो ब्रिज वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, कंक्रीट से बने हुए ब्रिज भी वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पिलर्स जो हैं वो एक स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। ठीक है, इस बारे में और बात करेंगे हम इलास्टिसिटी चैप्टर में। ठीक है, फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट्स रियल लाइफ में परफेक्टली रिजिड ऑब्जेक्ट्स डू नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हम ये मान के चलेंगे कि हम जिन भी ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं वो परफेक्टली रिजिड ही हैं। यहां तक आ रहा है कि समझे? हम क्वेश्चन से डील करते वक्त ये मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स परफेक्टली रिजिड है। मतलब इस चैप्टर को हम क्या कहते हैं? इस चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, सो वी आर अज्यूमिंग दैट द ऑब्जेक्ट्स दैट वी आर डीलिंग विथ दे आर रिजिड इन नेचर। ठीक है, मतलब ट्रूथ इज दैट परफेक्ट रिजिड बॉडीज डू नॉट एग्जिस्ट, but we are going to study assuming that we have rigid bodies with us. ठीक है, so ये तो हो गई rigid body की बात। ठीक है, now I have received some questions here. Ayush is asking me whether stiff is equal to rigid. देखो, first of all stiff word जो है ये physics language का एक technical word नहीं है। ठीक है, like stiff general English language के sense में use किया जाता है। So like it's not a word that we use in physics. ठीक है, मतलब technical word नहीं है ये। सो यू कैन इमेजिन कि ठीक है, स्टिफ का मतलब हार्ड हो गया जिसको वही डिफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, एंड अनुष्का हैज आस्क्ड मी हार्डनेस और रिजिडिटी सेम है क्या? तो अनुष्का, हार्डनेस जो है, हार्डनेस अगेन दैट्स अ टेक्निकल टर्म जो कि हम डिफाइन करते हैं टेक्सचर वगैरह के लिए। फॉर एग्जांपल वुड इज नॉट कंसिडर्ड एज हार्ड। ठीक है, तो हार्ड होना और रिजिड होना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, यू कैन से दैट जो चीजें हार्ड नहीं होंगी वो रिजिड तो पक्का नहीं होंगी, बट हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि हम सरफेस को स्क्रैच कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, जो सरफेस इजीली स्क्रैचेबल है, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर अगर हम नाखून चलाएं और उसके ऊपर लाइनें बन जाएं, तो दैट इज सॉफ्ट, दैट इज नॉट हार्ड। ठीक है, जैसे ग्लास कैन बी कंसिडर्ड एज हार्ड। ठीक है, बट हार्डनेस एंड रिजिडिटी अगेन इट फील्स लाइक दैट दे आर द सेम थिंग, बट सिंस बोथ आर टेक्निकल टर्म्स वी शुड नॉट से दैट दे आर सेम। लाइक ठीक है, इंट्यूशन इज ओके। ठीक है, Anushka is asking me if something is hard, will it be rigid? You can say again, देखो perfect rigid तो होता ही नहीं है। You can say कि ठीक है perfect hard भी नहीं होता, ये हम scratch करेंगे deformations आएंगे ही आएंगे। Yes, so just as perfect rigid bodies don't exist, perfect hard bodies do not exist. And if something is hard enough, yes, if something is hard, we can call it rigid. Yes, you can use these words interchangeably. ठीक है, but rigid is the more popular word you can say. ठीक है, any other chapter, any other question means we okay, so Shivansh has pointed out something. He says if we mark 2 points on a body and if the distance remains same even after applying force, it is a rigid body, and that's exactly what a rigid body is. Perfect. Like
ठीक है, रिजिड बॉडीज में एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी होती है। आई थिंक यहाँ पे तो मैंने यही सब लिखा है कि परफेक्ट रिजिड बॉडीज डू नॉट एग्जिस्ट, दैट मींस या यू कैन जस्ट रीड दिस वन। ये तो पॉइंट एम्फेसाइज करने के लिए था, ठीक है। एंड जो बात शिवांश ने पकड़ी है, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। आई विल बी कमिंग टू दैट पॉइंट ओनली, ठीक है। सो इन आवर स्टडीज वी विल बी अज्यूमिंग दैट वी आर डीलिंग विद परफेक्ट रिजिड बॉडीज, एंड इफ आई मूव ऑन, for a rigid body it can be asserted that separation between any two points of a rigid body can neither increase nor decrease। पहले तो ये बताओ यहां तक की स्टेटमेंट अग्री करते हो इससे या नहीं करते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स मैंने कह ही दिया है कि यस ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट, लाइक deformations cannot take place, so that means that the separation between two bodies can neither increase nor it can decrease, ठीक है। so what does this mean, like what are the mathematical implications of this? इस स्टेटमेंट का ये भी मतलब हो गया क्या कि दो पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी? कैन आई से कि ये जो स्टेटमेंट है जो मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन कर रखा है, इसका इंप्लीकेशन ये है कि दो पॉइंट्स की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यस। चलो मैं दो ऑप्शंस देता हूं, इसका इंप्लीकेशन ये है कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो आएगी, या इसका इंप्लीकेशन ये है कि अप्रोच वेलोसिटी जीरो आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी को जीरो कहे या अप्रोच वेलोसिटी को जीरो कहे, लाइक व्हाट इज द इंप्लीकेशन? हरदास सेज बोथ, ऑलराइट, ठीक है। अप्रोच वेलोसिटी को जीरो कहेगी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज अ रॉड, ठीक है, लेट्स से देयर इज अ रॉड, let's say there is a rigid rod, ठीक है। you can just imagine like for imagining purpose you can keep on imagining metal objects, they are like almost rigid, ठीक है। एटलीस्ट जो फोर्स हम लगाएंगे उनके लिए तो रिजिड की तरह बिहेव कर लेंगे। तो एक एंड के अबाउट इसको हिंज करके अगर मैं घुमा दूं तो ये दूसरा पॉइंट मुझे सर्कल पे चलते हुए नजर आएगा, ठीक है। जबकि एक पॉइंट रेस्ट पे है, एक पॉइंट रेस्ट पे है, दूसरा मूव कर रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो तो गई नॉन जीरो, ठीक है। सो डिस्टेंस चेंज नहीं हो पाने का ये मतलब नहीं होता कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी तो डायरेक्शन पे भी तो डिपेंड करती है। मतलब इफ समथिंग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम मी एंड इट स्टेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम मी, देन इट डजंट मीन कि वो रेस्ट पे होगा, ठीक है। हो सकता है कि वो सर्कल पे मूव कर रहा हो, मेरे अबाउट सर्कल बना रहा हो, ठीक है। So saying that the distance between 2 points on a rigid body should remain same does not mean कि दो पॉइंट्स के बीच में relative velocity zero रहेगी। No, that would be the wrong interpretation. The correct interpretation would be this, that the approach speed between any two randomly chosen points of the rigid body will always be zero. Tell me whether you agree with this statement or not. The approach velocity between any two randomly chosen points of a rigid body will always be zero, and this is the correct thing to remember, ठीक है। Now this is the mathematical implication here. Approach velocity between any two points of a rigid body will always be zero, ठीक है। इसको हमने यूज किया भी था मेरे ख्याल से, जब हम एक वो रॉड इन अ कॉर्नर वाला क्वेश्चन कर रहे थे। दैट क्वेश्चन विल कम अप प्रीटी क्विक शॉर्टली, ठीक है। सो फॉर रिजिड बॉडी रिमेंबर दिस, ठीक है। रिजिड बॉडी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, हम मान लेते हैं कि बॉडी रिजिड है, और किसी भी रिजिड बॉडी के कोई से भी दो पॉइंट पकड़ो, उनके बीच में अप्रोच वेलोसिटी हमेशा जीरो ही आएगी। वी आर गोइंग टू यूज दिस फैक्ट इन सॉल्विंग क्वेश्चंस आल्सो, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड ऑलवेज कीप देम इन योर माइंड, ठीक है। ये वो पॉइंट्स है जिनकी एब्सेंस, ब्रेन से जिनकी एब्सेंस की वजह से रोटेशन चैप्टर डिफिकल्ट बन जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स माइंड में रखो, और सही टाइम पे अगर रिकॉल कर लो कि ये पॉइंट यूज किया जा सकता है, यू विल फाइंड द क्वेश्चंस आर प्रीटी इजी। चलो अभी आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। सो अनदर सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडी इज दैट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, सो गाइस अगेन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पॉइंट क्या बता रहा है मैं समझाता हूं, ठीक है। लेट्स से वी हैव एनी रैंडम शेप्ड रिजिड बॉडी, और इस रिजिड बॉडी को हम यूं घुमा रहे हैं, यहां तक आ रहा है समझ में? तो ये पॉइंट कह रहा है कि इस पे अगर हम अलग अलग पॉइंट्स मार्क कर दें, ए बी सी या डी, अब अगर हम ए और बी के बीच में जो एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, वो बी और ए की बीच, मतलब ये तो इक्वल होती है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। पर अगर ये चारों पॉइंट्स अगर सेम रिजिड बॉडी पे हुए, तो यही वैल्यू ओमेगा सी डी से भी मैच करेगी, यही वैल्यू ओमेगा डी बी से भी मैच करेगी, ठीक है। और यही वैल्यू ओमेगा एडी से भी मैच करेगी। मतलब तुम कोई सी भी पेयर बनाते रहो, ठीक है, कोई सा भी पेयर बनाते रहो। इस बात को मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जस्ट लर्न दिस थिंग, बट ये मैं वेरीफाई करवा के दिखा दूंगा। वेरीफाई करवा के मतलब कुछ केसेस में हमको अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी पता होगी, तो मैं ये चेक करवा दूंगा कि ये पॉइंट्स वैलिड है। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड
दिस इज अनदर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिजिड बॉडीज। यहां तक आ रहा है कि समझ में? ठीक है, ये आशीष, ये क्या कर रहे हो तुम? टाइप ऑफ मैसेज, टाइप योर मैसेज, यस सर, टाइप योर मैसेज, ओके सर, ये क्या चल रहा है? आई थिंक वहां पे टाइप योर मैसेज जो लिखा हुआ आ रहा है तुम उसके आगे लिख दे रहे हो, ओके, सो दैट इज यस। पता नहीं जो भी हो रहा है, चलो अभी मेरे पॉइंट पे ध्यान दो, ये समझ में आ रहा है? वेरी गुड आशीष, तुम रिप्ले में देखना कि तुम्हारे क्या मैसेज आ रहे हैं। इट्स एक्चुअली क्वाइट फनी। ठीक है, अच्छा, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जब हम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी कहते हैं, मतलब सी, जैसे वी नेवर से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ विच पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट। ठीक है, उसका रीजन ये है कि कोई भी दो पॉइंट चुनो, एंगुलर वेलोसिटी सेम आएगी। सो इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग द पॉइंट्स वी कैन सिंपली से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ विच पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट। ये समझ में आ रहा है क्या? ये बात आ रही है समझ में? मतलब जो हमारी जो लैंग्वेज है, जो इस चैप्टर में जो तुम्हें लैंग्वेज मिलेगी, उसमें यू विल फाइंड कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी की बात की गई है। ठीक है, हरदा तुम इतना इंटरेस्टेड क्यों हो जाते हो? मतलब एकेडमिक को छोड़कर सेशन में कुछ भी अगर चले, यू आर द मोस्ट इंटरेस्टेड कैंडिडेट इन वॉट एवर इज गोइंग अपार्ट, और वॉट एवर इज गोइंग ऑन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है, व्हाई इज दैट? मतलब वो जो कहावत है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम्हारे ऊपर ही एकदम फिट होती है। मतलब दुनिया में कुछ भी चल रहा होगा, ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड होगा। ठीक है, ये मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि अतर भी बीच में कूद पड़ा। वैसे बहुत इंप्रूवमेंट है अतर भाई, मस्त है। जो शुरू के सेशंस मैंने लिए थे, आई स्टिल रिमेम्बर, कोई ऐसा सेशन शायद नहीं जाता होगा जिसमें मुझे तुम्हें टोकना या डांटना ना पड़ता हो। ठीक है, बट यू हैव सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड, यस यस, टोटली एडमिट दैट यू हैव सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड अथर्स। ठीक है, एंड आर यू एबल टू रियलाइज कि उससे तुम्हें ही फायदा हुआ है? लाइक डू यू फाइंड कि तुम्हारी अब अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर है पहले से? फाइन, ग्रेट। ओके, लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। सो ये लैंग्वेज क्यों ऐसी है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वो समझ में आया? ठीक है, लैंग्वेज समझ में आई कि वी टॉक अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी बिकॉज कोई सा भी पॉइंट सेलेक्ट करो, कोई से भी दो पॉइंट सेलेक्ट करो, इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन नाउ। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन हियर, ऑफ कोर्स वी हैव डन दिस क्वेश्चन अर्लियर आल्सो। ठीक है, बट इस क्वेश्चन के मल्टीपल एस्पेक्ट है। उस समय हम जिस एस्पेक्ट की बात कर सकते थे, केवल उस एस्पेक्ट की बात कर ली थी। अभी भी ये क्वेश्चन इसी सेशन में दोबारा रिपीट होगा। ठीक है, फर्स्ट लेट्स सी what we have to do right now. The lower end of the rod is being pulled at a constant speed v naught, the instantaneous value of speed of the other end. So guys, ये स्पीड निकालना याद है क्या? जैसे if I name this end as a and if I name this end as b, if I ask you the value of vb, do you remember finding it out? और अगर याद है तो बताओ मुझे क्या रिजल्ट आएगा, निकाल के रिजल्ट बताओ। के हरदात, फाइन, यस यस आदित्य, करेक्ट। नो गिरीश, गिरीश याद करके नहीं बताना, सॉल्व करके बताना है। सो डोंट टेल मी कि आई थिंक ये होगा, सॉल्व करके कॉन्फिडेंटली बताओ कि ये है या कुछ और है। लाइक मैं भी आंसर जो है मेमोरी से नहीं बता रहा, मैं सॉल्व करके निकालूंगा। मतलब इट्स डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द आंसर, मेरे को भी मेजोरिटी आंसर याद नहीं रहता है। So I think Hardat and Aditya have given me the answer. I'm waiting for answers from others. मेथड याद है? या मेथड अगर याद नहीं भी है तो आज ही हमने पढ़ा है। अप्रोच वेलोसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी मस्ट ऑलवेज बी जीरो, यूज दैट लॉजिक। करेक्ट गिरीश, नाउ यू आर करेक्ट।
So I have received answers from 3 people. Come on, I need at least 7 to 8 answers. Three people. Yes, correct, Aditya. आदित्य तुमने तो पहले ही दे दिया था. Come on guys, I'm waiting. No, Rishika. Come on guys, don't disappoint me like this. Yes. वी अप्रोच 0 करना है. अभी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में अगर अटके रहेंगे तो मैं आगे की कैसे बताऊंगा, मतलब किस कॉन्फिडेंस से बताऊं मैं आगे की कॉन्सेप्ट. मुझे लग रहा है कि बहुत कम लोग अभी ऑनलाइन हैं यार. डोंट नो, लाइक दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग. नो शिवांश. देखो वी अप्रोच को 0 करते हैं अपन. देखो इस v का जो इधर की तरफ कंपोनेंट है, इफ दिस एंगल इज थीटा दिस विल बी 90 माइनस थीटा. ठीक है, तो इस v का इधर की तरफ कंपोनेंट बनेगा v cos 90 माइनस थीटा, और इस v नॉट का इधर की तरफ जो कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा v नॉट cos थीटा. नाउ फॉर अप्रोच वेलोसिटी टू बी 0, cos 90 माइनस थीटा विल बिकम sin थीटा. सो v sin थीटा शुड बी सेम एज v नॉट cos थीटा. सो यहां से v आ जाएगा v नॉट cot थीटा, ये बन जाएगा. तो ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर. ठीक है, आयुष माइनस साइन नहीं आएगा. एंड आशीष तुमने लिखा है वी नॉट इक्वल टू टेन थीटा, तो ये तो डायमेंशनली मैच नहीं कर रहा. अच्छा, अब ये सब कुछ क्लियर हो गया क्या? ठीक है, अब सेकेंड पार्ट कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, इसको देखते हैं. देखो अब इस बात को समझते हैं. अब इस बात को देखते हैं. आशीष एक्चुअली तुम्हारे मैसेज थोड़े अजीब तरीके से ही आ रहे हैं. अभी तुम चलो इस पे ध्यान दो. देखो हमको ये वेलोसिटी पता है, मतलब हमको पता है कि बी पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, एंड वी आर ऑल्सो अवेयर कि ए पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, राइट. ठीक है, तो दो पॉइंट्स के हमें वेलोसिटी वेक्टर्स पता है. तो इस वी वेक्टर का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट आएगा वी, ये एंगल थीटा होगा, तो ये वी कॉस थीटा आएगा. ठीक है, और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा और ये आएगा वी नॉट साइन थीटा. चेक करो. ठीक है, अगर याद हो मैंने बताया था कि ये वाले जो कंपोनेंट होते हैं जो अलोंग द रॉड होते हैं या अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल होते हैं, दे प्ले अ रोल इन वी अप्रोच. इनफैक्ट हमने इन्हीं को यूज करके वी अप्रोच को 0 कराए. और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं दे प्ले रोल इन ओमेगा. ठीक है, ये ओमेगा में रोल प्ले करते हैं, एंड इनफैक्ट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें इन्हें सीधा ऐड कर देना चाहिए. सो वी कॉस थीटा प्लस वी नॉट साइन थीटा, और इसको फिर डिवाइड कर देना चाहिए एल के साथ. चेक करो. आ रहा है क्या यहाँ तक समझ में? क्लियर है? अब v की वैल्यू डाल दो. v की वैल्यू हमने निकाली थी वी नॉट कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल. तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाय एल साइन थीटा. चेक कर लेना. ये मतलब कॉट थीटा को कॉस बाय साइन लिख के थोड़ी मैनिपुलेशंस करो, ये आ जाएगा. देखो आया क्या समझ में? यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, चलो पहले तो यहीं तक के आंसर दिखाता हूँ, फिर आगे का क्वेश्चन पूछूंगा. ये देखो, इस क्लियर है ये? ठीक है, मतलब v हमने मान लिया, v के कंपोनेंट ले लिए.
ठीक है, ये वेलोसिटी v मान ली, ये v के कंपोनेंट हो गए v sin थीटा और v cos थीटा। तो v sin थीटा को तो v नॉट cos थीटा के इक्वल होना ही पड़ेगा, तो यहां से v निकल आएगा, उस v को यहां डाल के ओमेगा निकाल लो। ठीक है, सो ये v नॉट cot थीटा आ गया, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। आर वी क्लियर टिल दिस? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज मैं पूछता हूं जो अभी तक नहीं पूछी हुई थी। ठीक है, ये बताओ कि इस रॉड के मिड पॉइंट की स्पीड निकालनी है, इस रॉड के मिड पॉइंट की स्पीड निकालनी है, क्या करूं बताओ, कैसे निकालें? रॉड के मिड पॉइंट की स्पीड। ठीक है, टू बिगिन विथ कैन यू टेल मी द डायरेक्शन इन विच द मिड पॉइंट इज गोइंग? Can you tell me the direction in which the midpoint is going? Vertically down, Ayush, is this what you are saying? ऋषिका अग्री नहीं कर रही। ऋषिका, कैन यू टेल मी कि क्यों आयुष गलत है? Downwards and rightwards is what Rishika is saying. Okay, like see the thing is कि वो डायरेक्शन क्लियर नहीं है, मतलब वो कुछ वो अलोंग रॉड नहीं है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो अलोंग रॉड नहीं है, तो वो कोई रैंडम डायरेक्शन होगी। ठीक है, और तुम्हें याद है अगर हमें फिजिक्स में किसी वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू पता करनी हो और हमें उसकी डायरेक्शन भी नहीं पता हो तो हम क्या करते हैं, मतलब हमारा रेमेडियल स्टेप क्या होता है? ठीक है, जैसे देखो जब मैंने बी की वेलोसिटी निकाली तो मुझे डायरेक्शन ऑलरेडी पता थी। ठीक है, तो अभी क्योंकि मुझे सेंटर का जो मोशन होगा उसकी डायरेक्शन भी नहीं पता, सो आई शुड गो फॉर टू कंपोनेंट्स। जैसे मैं ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी मैं पहला तरीका बता रहा हूं। ठीक है, सो वी शुड गो फॉर टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, राइट? अब ये टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स तुम जैसे मर्जी वैसे ले सकते हो, एंड इंटेलिजेंट चॉइस वुड बी दिस वन। ठीक है, an intelligent choice would be like this, you can say that this is, let's say, v1 and you can say that this is v2। why am I calling this intelligent choice? क्योंकि देखो मेरे को दो अननोन्स की वैल्यू निकालनी है, सो आई नीड टू इक्वेशंस। एक इक्वेशन में कैसे निकालूंगा, एक इक्वेशन इसको सी लिख देता हूं, तो ए और सी के बीच में अप्रोच वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए क्या? मतलब आई नीड टू कंडीशंस। सो माय फर्स्ट कंडीशन इज v approach between a and c should be zero, which obviously means that v1 should be equal to v naught cos theta। so do you understand कि मैं इसको intelligent choice क्यों बोल रहा था? क्योंकि यहां से v1 की वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली मिल रही है। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, अच्छा अब दूसरी कंडीशन क्या मतलब ये मैंने पहली कंडीशन यूज करी, दूसरी में क्या यूज करूंगा? रिजिड बॉडी के लिए मैंने तुम्हें ये बताया कि एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑलवेज रिमेन सेम। तो एंगुलर वेलोसिटी हमने ए बी को यूज करके निकाली थी, अब अगर एंगुलर वेलोसिटी में सी ए या सी बी को यूज करके निकालूं, आई शुड स्टिल गेट द सेम वैल्यू। ए बी को यूज करके हमने निकाली थी वी नॉट बाय एल साइन थीटा। ठीक है, अब जो फिगर बना हुआ है इसके हिसाब से आई कैन ऑल्सो राइट v2 प्लस वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाय एल बाय टू। जस्ट चेक दिस, आ रहा है तक समझ में? सो वी हैड टू अननोन्स, वी हैड टू कॉन्सेप्ट्स। कौन से दो कॉन्सेप्ट? कि वी अप्रोच जीरो होना चाहिए, सी का ए की तरफ अप्रोच जीरो होना चाहिए, और सी और ए को यूज करके अगर हम एंगुलर वेलोसिटी लिखें तो वही एंगुलर वेलोसिटी आनी चाहिए जो ए और बी को लिख के आई थी। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v1 ऑल्सो, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ v2 ऑल्सो। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? मेरा क्वेश्चन था कि सी की स्पीड बताओ, तो हमारा फाइनल आंसर होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इसको फिनिश करो क्योंकि अभी मैं एक और सेकंड मेथड से आंसर निकलवाऊंगा, सो उस समय हम आंसर मैच कर पाए उसके लिए इसका आंसर निकाल के रखो। लाइक फिनिश द कैलकुलेशन, v1 तो निकल ही गया है, v2 उस इक्वेशन से निकल जाएगा, फटाफट निकाल लो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड गेट मी द वैल्यू ऑफ vc, उसको रेडी करके रखो। अभी इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से भी एड्रेस करूंगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं पहले एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर इसी क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट से एड्रेस करेंगे। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं अगेन अ वेरी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको समझने के लिए लेट्स ट्राई टू सी अ सिचुएशन हियर। तो अभी इस फिगर से कुछ समझ में आ रहा है? मतलब फिगर समझ में आ रहा है? फिगर है क्या? देयर इज अ डिस्क एंड दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। कैन यू सी दैट? द डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब इस डिस्क पे मैंने तीन पॉइंट मार्क करे हैं ए बी सी, एज यू कैन सी हियर। ठीक है,
आ रहा है समझ में? मान लो मैं ये पूछता हूं कि अगर ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो ए पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ मुझे। ठीक है, ठीक है, या एक काम करता हूं, मैं एक ब्लैंक पेज पर ये चीज करके दिखाता हूं। ठीक है, लेट मी ऐड, सी लेट्स से एक कोई भी जस्ट अ मिनट, एक रैंडम शेप की बॉडी मान लेते हैं, समझने में आसानी होगी अगर इसको हम प्लेनर बॉडी ले लेते हो। ठीक है, मतलब दिमाग के घोड़े इधर उधर नहीं दौड़ेंगे। ठीक है, so let's consider this a planar body and let's now consider that an axis is passing through this body, something like this, ये समझ में आ रहा है? और इसको हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे ओमेगा से, किसी एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, अब माय क्वेश्चन इज, सपोज मैंने कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर दिया ए और मैंने तुमसे पूछा कि कैन यू गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए। डायरेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कैसे, लाइक इज देयर अ प्रोसीजर जिसको ओबे करके हम ए की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सके। ठीक है, माय क्वेश्चन इज क्लियर? इस समय ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए मुझे, क्या कोई प्रोसीजर है जिसको ओबे करके ये पता लगाया जा सकता है? प्लीज टेल मी क्या करें। आई वॉन्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, कैसे पता लगाऊं? सी नॉट ओनली क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एग्जैक्ट एरो ड्रॉ करना चाहता हूं मैं। सी प्रोसीजर क्या है, आई टेल यू द प्रोसीजर। ठीक है, आई टेल यू द प्रोसीजर। ठीक है, ए को एक्सिस से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ए को एक्सिस से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, करेक्ट गिरीश, करेक्ट। एंड कैन आई नाउ से दैट वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन? क्योंकि समझाता हूं क्यों, रीजन देता हूं मैं। ये पॉइंट एक्सिस पे है, ये तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, तो ए पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अप्रोच जीरो होना चाहिए क्या? अप्रोच वेलोसिटी जीरो आनी चाहिए क्या? और वो जीरो कब आएगी? वो जीरो तभी आएगी जब ए की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस ब्लू लाइन से परपेंडिकुलर हो। क्योंकि अगर इधर की तरफ होता तो अप्रोच कर रहा होता, इधर की तरफ होता तो रिसीड, दूर जा रहा होता। ठीक है, सो देर इज ओनली वन ऑप्शन फॉर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए, और वो है कि ए को एक्सिस से ज्वाइन करो और उस पे परपेंडिकुलर, उस लाइन से परपेंडिकुलर एरो बना दो। आया क्या समझ में? वी कैन डू सेम फॉर एनी अदर पॉइंट। अभी अगर मैंने बी की वेलोसिटी पूछ ली कि बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ, यू कैन जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग। ठीक है, इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से एक एरो बना देंगे, यूं समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हमारे समझ में? तो यही कर रखा है मैंने प्रीवियस फिगर में, यू कैन नाउ नोटिस दिस। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल, यहां तक आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, कैन आई से कि ये जो एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब इसको उल्टा करते हैं। उल्टा करने का क्या मतलब हुआ, या चलो पहले तो ये पढ़ लो ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, ये सारे वही पॉइंट्स जो मैंने भी बताए हैं। ठीक है, जस्ट जस्ट रीड देम वंस। डिस्क शोज पाइवोटेड एट वन पॉइंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड यू कैन जस्ट सी, ये सारे वही पॉइंट्स हैं। ठीक है, छोड़ते हैं इनको, अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि मैं उल्टा कर रहा हूं। अभी अभी मैंने क्या किया था, एक्सिस देकर अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी पूछी थी। अब अगर मैं उल्टा करूं, उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, लेट्स सी कि एक रिजिड बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स के वेलोसिटी वेक्टर मार्क कर दिए, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि बताओ ये डिस्क किसके अबाउट रोटेट कर रही है, एक्सिस कहां पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है, क्या करेंगे? प्रोसीजर बताओ मुझे, आंसर नहीं जानना। ठीक है, तो ये मत बताना कि सर यहां पर होगी या वहां पर होगी, प्रोसीजर बताओ मुझे। ठीक है, प्रोसीजर, हरदात, आई एम जस्ट टेलिंग कि मुझे आंसर नहीं जानना, मुझे प्रोसीजर। शुड आई से कि इन एरोस के परपेंडिकुलर लाइंस बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए हमें? वी शुड स्टार्ट ड्रॉइंग लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू दीज एरोस, लाइक विल दैट बी ऑफ हेल्प? आ रहा है क्या समझ में? एंड यहां पे देखो मैंने मल्टीपल एरोज ड्रॉ किए हैं, ये सारे एरो हिसाब से ड्रॉ किए गए। हिसाब का क्या मतलब हुआ, इन तुम्हें इतने सारे एरो की जरूरत नहीं है, अगर दो एरो भी हुए तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। कोई भी दो एरो हुए
तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। एंड इट इज कंपल्सरी कि बाकी पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो इसी पॉइंट से पास करेगा। तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो एरो पे तुमने परपेंडिकुलर डाला वो कहीं और बीट कर रहे हैं, किसी दो एरो पे और परपेंडिकुलर डाला वो कहीं और बीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पर्टिकुलर पॉइंट को। आ रहा है यहां तक समझ में? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। इंस्टेंटेनियस इसलिए क्योंकि ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। विल सी, लाइक अभी तुम इंस्टेंटेनियस वर्ड ऐड कर लो, ठीक है। आगे चेक करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये एक्सिस स्टेशनरी हो, ठीक है। इट कैन कीप ऑन चेंजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, अभी एक चीज पे वापस चलते हैं, लेट मी गो बैक टू दिस फिगर, ठीक है। इस फिगर में अगर ये डिस्टेंस L1 है मान लो, तो ए की स्पीड बता पाएंगे क्या? ए की स्पीड, अब ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, याद करो। अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ये इनफैक्ट सर्कुलर मोशन में क्या पढ़ा था, अब तो हमने कंप्लीट वर्जन भी देख लिया है ओमेगा का, तो वीए की वैल्यू ओमेगा L1 आ जाएगी क्या? ठीक है। कैसे लिख रहा हूं मैं ये, अगर मैं ओमेगा के कंप्लीट वर्जन पे जाऊं तो वी ए साइन 90 माइनस 0 डिवाइडेड बाय L1, ये लिखा है मैंने, ये देखो समझ में आया क्या? ओमेगा का कंप्लीट वर्जन, ए वी ए वेक्टर का जो लाइन है, लाइन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी ए साइन 90 हो गया, ठीक है। ये जो दूसरा एंड है, ठीक है, लाइक ये जो पॉइंट है ये तो मूव ही नहीं कर रहा, तो 0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट गिव्स अस ओमेगा। तो यहां से वी ए की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा L1 आ गई। मतलब जब सेंटर एक पॉइंट रुका हुआ हो तो ये फॉर्मूला हमारे सिंपल वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से बी की स्पीड भी बताई जा सकती है, अगर ये डिस्टेंस पता हो हमें, अगर ये डिस्टेंस L2 पता हो हमें, तो बी का डिस्टेंस भी, मतलब बी का भी बताया जा सकता है। यहां तक आ रहा है क्या समझ में? यस। तो फिर अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। इस रॉड में कैन यू लोकेट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन? अभी इस मोशन में रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, तुम्हें दो पॉइंट की वेलोसिटीज पता होने चाहिए, दैट इज इनफ टू लोकेट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तुम्हें अगर रिजिड बॉडी के कोई भी दो पॉइंट्स की वेलोसिटी पता है, तुम्हें उसके सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी पता है, मतलब यू आर इन अ पोजिशन टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ रिजिड बॉडी। बस तुम्हारे अंदर ये स्किल होना चाहिए। अभी जैसे मैं इस केस में अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पूछ रहा हूं, ठीक है, बताओ कहां होगी? आउटसाइड द रॉड नहीं, या तो प्रोसेस बताओ मुझे या फिर पॉइंट बताओ मुझे। आउटसाइड द रॉड इज फाइन, वो तो ठीक है, मतलब बहुत बड़ा आंसर हो गया है तो। ओके, गिरीश हैज गिवन मी एन आंसर, व्हाट अदर्स थिंक अबाउट दिस? देखो नोटिस करो, हमें इस ब्लू एरो, ये ब्लू एरो एक पॉइंट की वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। तो एक तो हमें इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, एक लाइन में ड्रॉ करूंगा जो इस ब्लू एरो से परपेंडिकुलर हो, ठीक है। सिमिलरली देयर इज अनदर ब्लू एरो व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहां इंटरसेक्ट होंगे ये? यहां पे इंटरसेक्ट होंगे क्या? क्लियर है? सो दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इट्स लाइक द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस राइट नाउ, मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी वैसी ही होगी जैसी तब होती जब रॉड को हम यहां पर बांध देते और फिर इसके अबाउट घुमा रहे होते। आ रहा है समझ में? मतलब इस इंस्टेंट पे रॉड के पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी हमें तब भी मिल जाती जब रॉड को हम ऐसे धागों से, डोरियों से यू बांध देते और फिर इन डोरियों को अगर घुमा रहे होते, तो रॉड के पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होती, वही वेलोसिटी इस समय है, एंड हेंस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब ये एक्सिस चेंज होगी, ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा। एज यू कैन सी, रॉड जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे ये जगह भी बदलेगी। आ रहा है क्या यहां तक समझ में? यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। आशीष, आई थिंक यू हैव मिस्ड सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स हियर बिकॉज ऑफ योर लैग, लाइक ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है, नाउ टेल मी,
अगर मुझे सी पॉइंट जो मिड पॉइंट है रॉड का उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है, कैन वी फाइंड इट आउट नाउ? पहले हम डायरेक्शन नहीं निकाल पाए थे, तो मैंने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने की बात करी थी, ठीक है। क्या इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होने के बाद सी की डायरेक्शन, सी की वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल पाएंगे? ठीक है, सी को इंस्टेंटेनियस एक्सिस से ज्वाइन करो और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ठीक है, समथिंग लाइक आई विल डू इट इन दिस फिगर। ठीक है, ये क्या है, ऑलमोस्ट स्क्वायर सा बन गया, इसलिए चीजें समझने में दिक्कत होंगी, मतलब इट शुड हैव बीन, अगर ये रेक्टेंगल रहता इट शुड हैव बीन गुड। मैं एक रेक्टेंगल यूज करके बनाता हूँ, देखो मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ठीक है। यू शुड ऑलवेज अवॉइड जेन लाइक स्पेशल फिगर्स while dealing with general. Yes, correct. Yes, correct, 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 Ayush. Yes, brilliant, good. ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? I can. Yes, this is what Ayush meant, right? ठीक है, यस, थैंक यू आयुष, गुड आइडिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से यू ज्वाइन करेंगे, ठीक है, एंड आई एम प्रेटी श्योर, आई एम 200% श्योर कि सी की जो वेलोसिटी है वो ऐसे आएगी। थिंक अबाउट दिस गाइस। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? बिकॉज दिस एंगल हैज टू बी 90 डिग्री, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सल रोटेशन। देखो आएगा समझ में, आ रहा है समझ में? और इन फैक्ट आर वी अवेयर ऑफ दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस रॉड लेंथ का हाफ होगा क्या? ये डिस्टेंस रॉड लेंथ का हाफ होगा क्या? विच मीन्स वीसी, विच मीन्स वीसी कितना होगा? वीसी को ओमेगा एल बाय 2 लिख देंगे क्या? और ओमेगा वी नॉट बाय एल साइन थीटा आया था क्या? और इसको सॉल्व करेंगे तो वी नॉट बाय 2 साइन थीटा आ जाएगा क्या? पहले क्या आ रहा था? पहले भी यही आ रहा था क्या? जब V1 V2 निकाल के हमने कैलकुलेशन करी थी, तब भी यही आ रहा था क्या? ऋषिका, अगर डिफरेंट आ रहा था तो एक बार V1 V2 की कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है, बिकॉज सेम आना कंपलसरी है, सेम ही आएगा, ठीक है। बाकियों का मैच कर रहा था, ठीक है। सो इस वाले मेथड में देखो, हमने दो वेरिएबल भी नहीं लिए, इनफैक्ट वेरिएबल तो हमने एक भी नहीं लिया, ठीक है। यस, ऑफ कोर्स दिस इज बेटर, बट दिस सी, जहां पे तुम दिमाग ज्यादा लगा लोगे वहां कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और अगर दिमाग ज्यादा नहीं चल पा रहा है तो उसको हमें कैलकुलेशन करके कंपनसेट करना पड़ता है फिर, ठीक है। मतलब जितनी बेटर थॉट प्रोसेस होगी उतनी कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और थॉट प्रोसेस अगर सही नहीं है तो कैलकुलेशन ज्यादा करके उसे कंपनसेट करना पड़ता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा, ये एक पॉइंट याद रखना, मतलब एक बात याद रखना जो तुम्हें एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। मतलब इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, इट्स रादर अ कन्विक्शन, समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड, दैट इफ velocity vector, when I say vector तो I mean direction also, if velocity vector of 2 points of a rigid body is known, all right, then we can calculate, well, और कैलकुलेट की जगह फाइंड आउट लिख लेता हूं, देन वी कैन फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ऑफ एनी पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी। मतलब तुम्हें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इट्स जस्ट कि तुम्हें इंफॉर्मेशन को सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। एक रिजिड बॉडी के 2 पॉइंट्स के वेलोसिटी वेक्टर्स पता है, तुम्हें उस रिजिड बॉडी के हर पॉइंट का वेलोसिटी निकालना, मतलब निकाली जा सकती है, तुमसे कहा जाए निकालनी है तो निकाली जा सकती है। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज देयर, यू कैन नॉट से दैट इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, ठीक है, बस तुम्हें यूज करना आना चाहिए। आ रहा है क्या तक समझ में? सो दिस इज बेसिकली नॉट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट दिस इज लाइक समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर, जिससे कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए, तुम्हें ये पता रहे कि क्वेश्चन ये सॉल्वेबल कब है और इनसॉल्वेबल कब है, लाइक, ठीक है, मतलब कितनी इंफॉर्मेशन एब्सोल्युटली नेसेसरी थी, ठीक है।
वेक्टर्स का मतलब डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं तुमसे कह दूं कि यस यस, हाँ मतलब वेक्टर्स, वेक्टर्स तो पूरी फिजिक्स में काम आते ही रहते हैं। मतलब वेक्टर समथिंग दैट वी कैन नॉट कीप आउट ऑफ आवर स्टडीज। ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस? क्लियर है? ठीक है। तो अच्छा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, इट्स बेटर, इट्स यस, आज क्रॉस प्रोडक्ट सभी ने रॉन्ग किया। आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी मेजोरिटी जनता सही कर रही है, मतलब और तुम लोग गलत कर रहे हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। इनफैक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं था ऋषिका, डॉट प्रोडक्ट था। डॉट प्रोडक्ट गलत किया था तुम लोगों ने। वो वाला क्वेश्चन था, बी डॉट ए को जीरो करना था, विच इज इवन सिंपलर देन कैलकुलेटिंग अ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था? यस गाइस, ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स मैं लिखवा रहा हूँ, इनकी समरी टाइप बना लेना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ये साइमल्टेनियसली याद होने चाहिए तुम्हें। ठीक है, तब तक तभी तुम इनको अप्लाई कर पाओगे। मतलब आधा पॉइंट याद रखने से अप्लाई नहीं हो पाएगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट याद है, एक याद नहीं है, अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मार्क करना। ठीक है, ये जो भी मैं लिखवा रहा हूँ पॉइंट्स ना, ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट क्लास में तुम्हें और दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने वाला हूँ। ठीक है, अभी आज थ्योरी यहीं तक कवर करते हैं, इसके आगे की थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, वी कैन नाउ बिगिन आवर डिस्कशन ऑफ गैलेक्सी। ऑलराइट, सो नाउ ओनली दो स्टूडेंट्स कैन स्टे बैक जिनको गैलेक्सी डिस्कस करनी है। ऑलराइट, आशीष कम ऑन, फिर रिप्ले देख लेना यार। मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी कि मैं वो दोबारा रिपीट करूंगा। ठीक है, जस्ट जस्ट वॉच द रिप्ले। मतलब ये जो लैग वाली जो सिचुएशन है, ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। सो लाइक बेटर टू वॉच द रिप्ले, ठीक है, देन टू एक्सपेक्ट रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। मतलब वी आर ऑलरेडी लाइक आई फील शॉर्ट ऑफ टाइम। सो ठीक है, विल सी आयुष। ठीक है, डेडिकेटेड, ये तुम अभी रुक जाओ, सब डेडिकेशन ही डेडिकेशन है। ठीक है, इट्स एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली द डेडिकेटेड सेशन, द वन दैट हैपेंस आफ्टर 10:30। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई टाइम का रश नहीं होता। मैं पेशेंटली बताता हूँ, आराम से बताऊंगा जो भी पूछोगे। ठीक है, अभी अपने को क्या करनी थी? गड़बड़ हो गई। आई ब्रॉट द रॉन्ग बुक, मॉडर्न फिजिक्स। ब्रॉट द रॉन्ग बुक। यस सतर, योर मैसेजेस आर रीचिंग मी नाउ, बहुत देर बाद आया है। सो प्रोबेबली बीच में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि तुम इतनी देर तक शांत तो बैठ नहीं सकते। ओके, अब क्या करें? डिस्कशन, kept the wrong book। चलो ठीक है, बाद में ही करते हैं फिर। यस, बुक नहीं लाया मैं। एक्चुअली गलत बुक उठा के ले आया। मतलब जो ट्वेल्थ वालों की बुक है वो उठा लाया, जो ट्वेल्थ में भी डिस्कशन चल रहा है। इफ यू आर लाइक विलिंग इनफ टू सेंड मी फोटोग्राफ्स ऑन व्हाट्सएप, आई हैव नो इश्यूज इन डिस्कसिंग, अगर भेजना चाहो। ओके, हाउ मेनी वर स्टेइंग बैक फॉर डिस्कशन? पहले तो ये बताओ, मतलब कितने लोग जा रहे थे, कितने लोग रुक रहे थे? 2, 3। ओके,
Okay. Okay. If I asked you to send photographs on WhatsApp, who will volunteer? All right. Girish has exam tomorrow, so Girish is. नहीं आयुष, मैं घर से सेशन नहीं ले सकता, वहाँ पे एक छोटा शैतान है जो मुझे लेने नहीं देगा. व्हाट्स द कंक्लूजन? चलो ठीक है, बाद में करते हैं डिस्कशन. ठीक है, वैसे तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट कब है? तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट शायद 22 को है, और उसमें रोटेशन चैप्टर पूरा आ रहा है, विच इज हाईली अनलाइकली टू गेट कंप्लीटेड. सो क्योंकि एक्चुअली मैं उसमें काफी ज्यादा पढ़ाऊंगा, मतलब आई प्लान टू टीच यू गाइस रोटेशन इन great detail. So we'll be teaching a lot of extra things to you guys. We'll be doing a lot of discussions. हम्म, चलो ठीक है, बाद में करते हैं डिस्कशन. चलो. ऑलराइट, बाय बाय गाइस. I think that is last resort. Like that is last resort. मतलब obviously it can be changed, but it is the last resort. मतलब नहीं होगे, डोंट वरी. I'll do something about that. मतलब we'll come. अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाए तो I'll change the syllabus. चलो ठीक है, चलो let's end the session. We'll cover in the next class. We'll discuss it in the next class. Bye bye. Take care. Good night. Bye.